چلو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہودی قوم کس کا انتظار کرتی ہے؟ کون ہے ان کا مسیحا؟ چلو دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے ایک حیران کرنے والی بات، یعنی یہودی کیسے دجال کو پکار رہے ہیں، اور 2027 دجال کے آنے کا سال ہے۔ پہلے دوستو آج ہم یہ جانیں گے کہ یہودی دجال کو روزانہ اپنی عبادت میں کیوں پکارتے ہیں، اور یہ دجال کو مسیحا کیوں مانتے ہیں، یہودیوں کا دجال سے کیا کنیکشن ہے، اور یہ آخرکار اسے کیوں پکار رہے ہیں، یہ سب معلومات آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوسری امتوں پر برتری اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں زمانہ آخرت تک کے معاملات کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو سے لے کر قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں تک ہر چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہی ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیوں کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، وہ دو قسم کی ہے، علامت کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانی، اور علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانی۔ اور تمام علماء دین اس بات پر متفق ہے کہ ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں، اور قیامت کی کئی علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کئی صورتوں میں پوری ہو چکی ہے، اور وہ وقت تیزی سے قریب آتا جا رہا ہے کہ جب علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوگی۔ اور ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں قیامت سے متعلق ایک بڑی نشانی یعنی کہ دجال سے متعلق بہت ساری معلومات بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اسرائیل میں یہودی اپنے اس آخری مسیحا جس کو مسلمان دجال کہتے ہیں اس کی دجال یہودیوں کا آخری مسیحا تیاریوں میں مگن ہیں، اور اس برس دجال کے استقبال کے لیے وہ کن منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل ایک نئے القدس کی تعمیر کی منصوبے پر کام کر رہی ہے، اور اسی منصوبے میں مسجد الاقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ مسجد اقصی کے حوالے سے 3 مختلف درجوں میں سے وہ ریاست کام کر رہی ہے، اور ان منصوبوں کا محض ایک ہی مقصد ہے کہ القدس یعنی بیت المقدس سے اسلام کو ختم کر کے اسے مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں لایا جا سکے۔ اسلام وہ چیز ہے جو نہ کبھی ختم ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ منصوبے کا آغاز سن 2000 میں ہوا تھا۔ اس منصوبے یہودی کیوں سبھی قوم کا سپنا ہی رہ جائے گا کے تحت اسرائیلی حکومت القدس یعنی بیت المقدس کو عرب اور اسلامی تاریخ کے شہر کی بجائے صرف یہودی شہر میں تبدیل کرنے کی پلاننگ رکھتا ہے۔ اسرائیل کے القدس پروگرام کو یہودی ایک خواب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ القدس کو پوری دنیا کے یہودیوں کا دارالحکومت بنایا جا رہا ہے، اور عظیم تر یروشلم کے منصوبے کے تحت یعنی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت یروشلم یعنی کہ آج کے دور میں جو فلسطین ہے اس میں 10 لاکھ یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل ایسا کرنا کیوں چاہتا ہے، اور یہودی قوم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ پیارے دوستو، اس کے جواب کو تلاش لگ رہا ہے اسرائیل کا ٹائم پورا ہو گیا اب کرنے کے لیے ہمیں اتہاس کی کتابوں میں جانا پڑے گا اور ان کو جھانکنا پڑے گا۔ یہودیوں کی مقدس کتابیں ہدایت کے مطابق دنیا کا یہ فیز 6000 سال پر محیط ہے۔ یہودی سال جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ 2017 کی تفتیش کے مطابق ستمبر کے مہینے میں یہودیوں کے مطابق دنیا نے اپنے 5778 سال پورے کر لیے ہیں، اور یہودی عقائد کے مطابق دنیا ختم ہونے میں تقریباً 200 سال اور کچھ زیادہ سال باقی ہے۔ ان کے مطابق یہ دنیا 200 سال کے اندر مکمل طور پر فنا ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یہودیوں کو 2 اہم کام کرنا ہے، ایک تو تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ اتہاس ہمیں بتاتا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو اپن تابوت سکینہ پہ بنائیں گے کہ وہ کیا ہے چیز تابوت سکینہ، اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے اور ریئیکشن دیں گے ہمارا۔
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल ईसा पूर्व में यरूशलेम में यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो पूरा देख के आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और जिसका ये वीडियो उसे भी जाके सपोर्ट करें। फतह हासिल की और उसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की बुनियाद पर यहूदियों का एक अजीम इबादत गाह तामीर करवाया और उसे शुरू किया। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था और इसी ताबूत में पत्थर की वो तख्तियाँ भी थी जो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थी, और इन तख्तियों पर अल्लाह तबारक व ताला के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और वो बर्तन भी मौजूद था जिससे मनो सलवा आते थे। और प्यारे दोस्तों, रिवायत के और तारीख के मुताबिक बताया जाता है कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये ताबूत इसी इबादत गाह की बुनियादों में छुपा दिया, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी मौजूद थे और आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उस जादू के नुस्खों को भी इसी ताबूत सकीना के अंदर इसी ताबूत में बंद करके इसी इबादत गाह ताबूत सकीना पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे भाई लोग, ये चेक करेंगे यार क्या चीज़ है ताबूत सकीना, हम भी इस पे रिएक्शन देंगे। और आप लोग भी हमारा रिएक्शन देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी इसी हजरत सुलेमान अभी हम वीडियो के बनाने में शुरुआती दौर में हैं। अभी सलाम की इबादत गाह को हैकले सुलेमानी कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और इस ताबूत में जो जादुई नुस्खे हैं वो बैतुल मुकद्दस के अंदर ही कहीं गार में छुपाए थे। चुनांचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मुकद्दस के नीचे गारे खोदे जा रहे हैं और ये बैतुल मुकद्दस को गिराकर हैकले सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं। और यही वो मंसूबा है जिसके लिए ये वीडियो की शुरुआत में ही हमने इस बात पर इशारा किया था कि इस मंसूबे का आगाज सन 2000 में बाकायदगी से किया गया था और ग्रेटर इजराइल के मंसूबे के तहत इस मंसूबे को अपने अंजाम तक पहुंचना है। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामिक अकायद के मुताबिक कयामत से पहले दज्जाल का ज़ुहूर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई उसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं और ये हैकले सुलेमानी की तामीर के बाद ही जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इजराइल में जमा होंगे। दज्जाल इजराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर कर देगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा और यही दज्जाल इनके साथ मिलकर पूरी ईसाई और मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहेगा। और रिवायत के मुताबिक ये जंग कई साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा और वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे और ये दोनों फिर दज्जाल के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएंगे। एक आज के दौर में तो लग रहा है नेतन्याहू, वो क्या इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ही लग रहा है दज्जाल है। बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा और यहूदी इस जंग को आर्मगडन कहते हैं और आज वो इसी जंग की तैयारियां भी कर रहे हैं। दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो बैतुल मुकद्दस को गिराकर वहां तक हैकले सुलेमानी का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं ताकि दज्जाल जब जाहिर हो तो वहां पर किंगडम ऑफ डेविड का ऐलान कर सके और यहूदी उसकी क़यादत में दुनिया को फतह करना शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों, ये तो यहूदियत अकायद है, लेकिन इस्लामी अकायद कुछ और ही कहते। दज्जाल को लाने में सबसे बड़ा रोल होगा इसका अमेरिका का। आज के टाइम मौजूदा हालात देख के लग रहा है ऐसा ही है कि वही लेके आएगा दज्जाल को। हमारे अकीदे
के मुताबिक तो मुसलमानों की आखिरी जंग जो होगी इसे जीत जाएंगे। फतुहात के बाद इस्लामिक रियासत भी बनेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 बरस की जिंदगी गुजार कर विसाल फरमाएंगे और उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा और यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा। उसके बाद यरूशलेम में जबले जैतून यानी माउंट ऑफ ऑलिव फट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये कयामत की पहली निशानी होगी। माउंट ऑफ ऑलिव यानी कि जबले जैतून पर यहूदी दफन होना एक फक्र समझते हैं और यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ शमून असर कहलाती है। ये लोग अब बिलाशुबा क़यामत की 4 सुन रहे हैं। ये लोग रोज दिन में 3 मरतबा शमून असर करते हैं यानी कि दज्जाल के लिए दुआ करते हैं, उसकी आमद के लिए दुआ करते हैं और ऊंची से ऊंची आवाज में ये दज्जाल को पुकार रहे हैं। चुनांचे ये आवाज सुनने की देर है कि ये दुनिया चक्की के 2 पाटों के दरमियान पिस कर बराबर हो जाएगी। जिन लोगों के दिल ईमान से भरे हुए हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार है, उन्हें तो इन पूरी सूरत हाल से कोई परेशानी नहीं है, कोई भी मुसीबत नहीं है, क्योंकि वो सब जानते ही है कि ये सब होकर। चलो तो भाई लोग आ जाओ, चाय पीते हैं, चाय पीते पीते देखते हैं वीडियो। आगे फंस गया होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल उस शख्स का नाम है जो कयामत आने से पहले जाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना ज्यादा सख्त होगा कि इसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर कयामत आने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मगर सवाल ये उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा, उसके आने से पहले इस दुनिया में कौन कौन से काम होंगे, यानी कि दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होगी जो जाहिर होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल की आमद यानी दज्जाल का आना, दज्जाल का हुलिया, दज्जाल कब और कैसे आएगा, इस तरह के बहुत से वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के आने से पहले दिखने वाली निशानियों के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो इससे पहले दुनिया में कौन कौन से ऐसे काम होंगे। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दज्जाल का दौर है, यानी ये दज्जाल के फितने का दौर है। दज्जाल के मानने वाले अपनी पूरी ताकत से इस पूरी दुनिया के ऊपर गोया के अपना कब्जा करने की कोशिश करने लगे हैं। तो आपने जैसे देखा, हमने आपको पहले भी बताया कि यहूदी अपने मसीहा के इंतजार में बैठे हैं कि वो उनका मसीहा कब आएगा और वो जब आएगा तब वो पूरी दुनिया को फतह करेंगे और अपनी हुकूमत कायम करेंगे। यानी दज्जाल जो है वो उनका मसीहा है, जिसको इस्लाम में उसे दज्जाल कहा जाता है, लेकिन यहूदी उसे अपना मसीहा मानते हैं। तो ये दज्जाल को मानने वाले ही यहूदी है। तो आज आपने इजराइल देख लिया, तो ये सारे अपने मसीहा को मानते हैं, यानी दज्जाल के आने से पहले उसकी आर्मी, उसके लोग तैयार खड़े हैं कि वो जब भी आएगा तब हम उसकी मदद करेंगे। तो दज्जाल जब इस दुनिया में आने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होगी जिनसे हमें पता चल जाए कि अब थोड़े ही अरसे के बाद में दज्जाल आने वाला है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। उनमें से सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज मुझे ये समझ में आता है कि आज आप देख रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ कैसे हालात है, कैसी सिचुएशंस है। और आज आप देख सकते हैं, सबको पता है कि हक पर कौन है, लेकिन मीडिया हाउस, न्यूज़ एंकर कैसे इजराइल हक पे ये है, फिलिस्तीन ये है भाई, लेबनान, ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल बिल्कुल इलीगल कर रहा है, सिर्फ अपने ताकत के दम पर इजराइल को ही सपोर्ट दिखाते हैं, कैसे फिलिस्तीनियों को ही मुजरिम ठहराते हैं, कैसे उन्हें ही टेररिस्ट कहा जाता है और इजराइल की ताकत कैसे बताते हैं। इजराइल के बारे में कोई जहर नहीं उगलता,
जब भी बात होती है तो फिलिस्तीनियों की बात होती है कि फिलिस्तीनियों ने ऐसा किया, उनकी ये गलती है, उनकी ये गलती है। तो आप देख सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि चंद साल धोखे और फरेब के होंगे, उनमें से सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। लोगों में से जो रुबजा होंगे वो लोगों से हर मसले पर बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, यानी दूसरों के मामलों में टांग अड़ाएंगे। तो इसी पर किसी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रुबजा क्या है? तो आपने फरमाया कि वो ये घटिया लोग हैं जो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स इस दुनिया में अपनी नबूवत का दावा करे या फिर वो ये बात कहे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, तो समझ जाना वही दज्जाल है, वो झूठा है और मक्कार है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद और कयामत आने तक, यानी कि मेरे और कयामत के दरमियान तुम लोगों में से 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। छोटे छोटे तो बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे, जैसे कि आजकल जगह जगह पर पैदा हो भी रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल आने से पहले दुनिया में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। वो सीधा अपनी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ये सब झूठे और मक्कार होंगे। क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद में इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, मैं ही आखिरी नबी हूँ। प्यारे दोस्तों, दज्जाल आने से पहले की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का जिक्र मिंबरों और मेहराबों से हट जाएगा, यानी कि दज्जाल के बारे में बताना खत्म हो जाएगा, लोग इसको भूल जाएंगे। और यही नहीं, उलमाए किराम अपनी तकरीरों में, अपनी खुतबों में दज्जाल के बारे में बताना बंद कर देंगे। हदीस शरीफ में आया है, जब लोग दज्जाल का जिक्र भूल बैठेंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। अब दोस्तों, आपको दज्जाल के आने की एकदम नज़दीक की निशानियों के बारे में बताते हैं, यानी कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उससे पहले 3 सालों में इस दुनिया में क्या होगा। याद रखें, दज्जाल के निकलने से या जाहिर होने से 3 सालों की कैफियत कुछ इस तरह की होगी। दज्जाल के आने से पहले के 3 साल इंतहाई सख्त दर्जे के होंगे। वो 3 साल बहुत ही दुख भरे और परेशानियों के साल होंगे, बहुत ही तकलीफ देने वाले साल होंगे। दज्जाल के आने से पहले के 3 सालों में तकलीफ किस तरह से होगी आप समझ लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के आने से 3 साल पहले, यानी कि पहले साल में 1/3 बारिश कम हो जाएगी, यानी कि आमतौर पर जितनी बारिश होती है उसका तीसरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब इस दुनिया में खाने पीने का इंतजाम बारिश के भरोसे ही होता है और अगर वो कम हो जाएगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, फिर अनाज की पैदावार कैसे होगी, इंसानों के खाने पीने का इंतजाम फिर किस तरह से किया जाएगा। इस तरह से दज्जाल के आने से 3 साल पहले दुनिया का खाने पीने का निजाम बिगड़ने लगेगा। उसके बाद दज्जाल के आने से 2 साल पहले, यानी कि इसके अगले साल 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, यानी कि जितनी बारिश हुआ करती है यानी कि उसका आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा और आधी ही बारिश इस दुनिया में आएगी। फिर इसके नतीजे में खाने पीने का पूरा निजाम बिगड़ जाएगा, लोगों को खाने पीने के लिए अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, दज्जाल के आने से 1 साल पहले, यानी कि तीसरे साल इस दुनिया में बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा, यानी कि बरसात पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए, जब 3 सालों तक बारिश नहीं बरसेगी तो फिर किस तरह से दुनिया में अकाल पड़ेगा, किस तरह का सूखा पड़ेगा। और ऐसे हालात में लोग खाने पीने के लिए मारे मारे फिरेंगे और उस वक्त जो हालात होंगे वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाएंगे। लोगों को उस वक्त रोटी का मिलना, दाना पानी मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। अब ऐसी हालत में जब दुनिया के हालात बिगड़ चुके होंगे उस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा, यानी कि उस वक्त दज्जाल का इस दुनिया में आना होगा। अब जब दज्जाल आ जाएगा उसके पास खाने के और रोटी के पहाड़ होंगे, उसके साथ में पानी का खजाना होगा। फिर दज्जाल उस खाने और पानी के जरिए से लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा, यानी कि वो उस रोटी और उस पानी के लिए लोगों से सौदा करेगा और लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अगर मुझे मानोगे, अगर मेरे ऊपर ईमान लेकर आओगे तो मैं तुम्हें खाने पीने की चीजें दे दूंगा। अच्छा। अब प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचिए, ऐसे में जब पूरी
दुनिया में खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और जिनका ईमान कमजोर होगा और जो दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में और उसकी निशानियों के बारे में नहीं जानते होंगे, वो आसानी के साथ दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे और उस पर ईमान लाकर दज्जाल के साथ में हो जाएंगे। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और इन जैसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। ये फितनों का दौर चल रहा है, इस तरह के ना जाने कितने फितने इस दुनिया में पैदा होंगे, मगर हमको इससे बचना है और हमारे लोगों को बचाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के साए से और उसके फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने हर एक मुसलमान भाई तक जरूर शेयर करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का लिंक कमेंट में दे रखा है भाई लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप लोगों का भी रिएक्शन देना कि भाई क्या सही बना या नहीं बना। क़यामत बहुत जल्द आने वाली है, ये तो बात सही है। आज के मौजूदा हालात देख के लग रहा है। चलो तो ठीक भाई।